A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 14, we have covered the chapter number 3, agriculture, industry and trade. And now in this lecture, that is lecture number 15 of economics, we are going to start your new chapter, chapter number 4, economic reforms since 1991, new economic policy. My dear students, first of all, you should know the meaning of economic reforms or NEP, new economic policy. See, business studies में भी although आपने chapter number 3 में ये पढ़ा होगा, still we are making it more clear. बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसीज़ को परस्यू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पॉलिसीज़ बनाई गई इकोनॉमी के लिए ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके. द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अल्टीमेटली लीड टू द क्राइसिस ऑफ 1990 की क्राइसिस किस लिए हुए? बिकॉज देयर वॉज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इन द इकोनॉमी. Now, economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. Economic reforms का मतलब क्या होता है? They are the set of economic policies जो directly होते हैं to accelerate the pace of growth and development. In the year 1991, the government of India launched NEP. 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, राइट, सो दैट जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं टिल 1990 उसको ओवरकम किया जा सके. 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे, एंड व्हाट वर दोज बेसिक कंपोनेंट्स? LPG, लिबरलाइजेशन वॉज देयर इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, देन privatization was there in place of quotas, and globalization was there in place of permits. That means licensing was removed by liberalization, quotas were removed by privatization, and permits were removed by globalization. Now let's have elements of new economic policy. अब हम इन elements को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है liberalization. What is the meaning of liberalization? Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control of the government. Liberalization word आपका liberal से बना है. Liberal means liberty और freedom means government का कोई भी रोल नहीं होगा in your working. Government will not monitor your working whatever you are doing or not, right? Means in simple words we can say that it refers to the situation when government minimize the unnecessary regulations. Means government का जो regulation मतलब जो government का no spoke है वो बहुत minimize हो गया और बहुत regulate हो गया. So this was liberalization. Now why there was the need for liberalization? Liberalization की need क्यों थी? Prior to 1991, government had imposed several types of control. 1991 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल इम्पोज कर दिए थे उसको ओवरकम करने के लिए. It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these control. बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स आना स्टार्ट हो गए थे. These control had given rise to corruption. इन कंट्रोल्स की वजह से क्या हुआ? करप्शन हुआ, राइट, अनड्यू डिलेज इन इनएफिशिएंसी, और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो भी कम हो गया. नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के अंडर हमने क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए? जब हमने लिबरलाइजेशन को फॉलो अप किया तो वी गो अहेड विद सर्टेन रिफॉर्म्स एज वेल. सबसे पहले आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट. नाउ उसमें क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में? फर्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया. नाउ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी लाइसेंस फॉर योर वर्किंग. देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज. अगर हम 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दें तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी. बात आती है सर वो 5 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी? सो देयर वर लिक्वर, राइट, cigarette, defense equipments, industrial explosive and dangerous chemicals. इन 5 के अलावा you are not required to have license for any other work.
नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया, राइट, क्योंकि जब गवर्नमेंट का रोल हटता चला गया तो ऑटोमेटिकली इट बिकेम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और 2010 और 11 की अगर बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, एटॉमिक पावर, रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, दीज इंडस्ट्रीज रिड्यूस्ड ऑल्सो। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन एरियाज का डी रिजर्वेशन किया गया, मीन्स देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोडक्शन पर्पस। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ, वाई, क्योंकि जब कोई लाइसेंसिंग से लिंकअप नहीं था, सो नाउ एवरीवन वाज हैविंग फ्रीडम टू प्रोड्यूस एज मच एज दे कैन एंड दे वर डूइंग सो। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अभी तक हमें कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम नहीं थी, लेकिन पहले पॉलिसी थी प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट, और लिबरलाइजेशन की हेल्प से इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रीडम मिल गई कि वो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। परमिशन नो लॉन्गर रिक्वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आने के लिए किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो दिस वॉज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, आपका बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आते हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है और आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर इज टोटली रेगुलेट एंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर 1, देयर वाज अ सब्सटैंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई का रोल एक रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ मार्केट फोर्सेस डिसाइड द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और मार्केट फोर्स ने अब डिसाइड किया कि क्या इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या वॉल्यूम रहेगा और क्या पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो दीज ऑल वर द पॉइंट्स केप्ट इन माइंड फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. Thank you and have a nice day.